who want to do something in India. So he is also sharing his hands to them. So Rajesh bhai, thank you very much for being a special guest for today's prize distribution ceremony of national Recording. level public speech competition. Recording. And one more thing, good thing which I would like to uh, announce here. Rajesh Bhai Sahu also joined the Smart Gaon group as a board member and investor. And soon he will work with us and our entire team to help Smart Gaon to grow across India and globe. So let's applause and invite Mr. Rajesh Sahu as a special guest to this ceremony. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, Rajesh bhai, you're audible. Yeah. Thank you, Rajni. Thank you, Yogesh ji. First of all, thanks for the wonderful introduction and inviting me on this platform where we are recognizing the future leaders of India. So, as Yogesh bhai already introduced, मेरा स्मार्ट गांव में जो कनेक्शन है वो because I have come from a very small village in Madhya Pradesh. So, from a very small village of 2,000 population to 2 crore population in Mumbai and surviving here is a journey of 30 years. I started my career in 1995. As Yogesh ji has said, I have started my career with Indian Air Force. My dream was to become a fighter pilot, but unfortunately, I was not knowing because of the infrastructure in village at that time. The information was not available. So I have joined in Air Force, but not in the fighter pilots team. So I have come as a, you can say, operational man, radar, and other supporting services, where we were not flying. क्या करना चाहते So where we were not, I am not flying, but I make other pilot flying in the sky with the help of radars. So I joined in 1995, continue my studies also. By the side, I completed my MBA. I was going through my Air Force life for 15 years. Unfortunately, my father was not well. He was regularly having some medical problems, so I had to come out, resign from the Indian Air Force to take care of my father's health and my other responsibilities, which is more important than that particular time, because he was not very comfortable roaming in Air Force. What happens? We have to get transfer every 2 years. So it was difficult for me to carry on from one place to another place with his medical conditions. So in that regard, I have put in my paper and got relieved from the Indian Air Force in 2010. After got my release from Indian Air Force, I was looking for job as I was working for 15 years. So again, the mindset was the job only. So I've started in my stream. I did my MBA HR. So, but I didn't get any HR job. Luckily, I got another opportunity in aviation where I've been offered as a manager operations in one of the private charter company. आपने देखा होगा कि एयरलाइन है, जो एयरलाइन है उसकी पैरेलल एक चार्टर इंडस्ट्री भी है जो कि प्रिविलेज्ड क्लाइंट्स और स्ट्रीम क्लाइंट्स और वीआईपीज को कैटर करते हैं. सो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू work for that charter company for 2 years. After that, they've decided to shut down. There was not a good time. Kingfisher also crashed, and there was no job in the market. एक एक विचार आया कि जीवन में जॉब तो बहुत कर लिए, 17-18 साल जॉब हो गई थी, फिर क्यों ना एक कोशिश की जाए कुछ अपना करने की. My wife is also MBA HR from ICFI. So we both started the journey together in 2012. Initial 1 year was very struggling.
sometimes it was a thought that we have taken a right decision or not. There was no business, family. To survive a family in Mumbai is a big thing. But with regular कोशिश करने वालों की तो ऐसा नहीं होती जो बोला जाता है, वो मैंने वहां पे फील किया कि when you are there in the place, you started working regularly without any fear, and आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है. After 1 year we have got first business, and there on the journey started. We did first flight for Sonakshi Sinha. It was in a education institute where she went for a speech to address a engineering college students. So that was my first flight, charter flight. Thereon, we have, as I told, I was a operation man for throughout my life. So apart from only doing in charter business, we want to start something in operations to help others. So I have taken some clearances from DGCA, Director General of Civil Aviation, for international flight clearances. Then I have taken clearances for ground handling from Bureau of Civil Aviation Security. Slowly, slowly, एकदम से कोई एक दिन में कोई इमारत खड़ी नहीं होती है. It took around 6 years to build up this company from scratch to where we are in, and now we have completed 12 years in April, and we are continuously growing. You'll not believe, the first 2 years was very struggling, but after that it was a journey. Means people, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. एक के बाद एक लोग आते गए, टीम बनती गई, अच्छी टीम बनी, और आज मेरे पास करीब 90 लोग हैं. हम लोग 2022 तक 60 एयरपोर्ट पे काम कर रहे थे. मेरे क्लाइंट्स में रिलायंस से लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी, एवरीबॉडी वी आर सर्विंग टुडे आल्सो. वी हैव गिवन मैन पावर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी. वी आर रिलायंस का जो जामनगर में, यदि आप देखेंगे, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका एनिमल रिहेबिलिटेशन का बन रहा है, उसको लास्ट 3 years से वी आर सपोर्टिंग टू ब्रिंग इन ऑल द कार्गो एयरक्राफ्ट, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से वो एनिमल्स लेके आते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, जिनको रिहेबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो वी आर हेल्पिंग इन दैट मिशन ऑल्सो. इसके साथ में मैंने एक और चीज शुरू की कि हम जब बढ़ते हैं तो साथ में टीम खड़ी करनी चाहिए. तो ट्रेनिंग हमने अपना स्टार्ट किया. वी हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल ऑन द एविएशन फ्रंट. ऑन जॉब ट्रेनिंग देके उनको हमने अलग अलग जगह पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया. After some time, they get good opportunity. They moved on from our organization to other organization, and they, some of them are very very good position today. Those who have been taught by us on the basic of the aviation. Aviation सिर्फ पायलट नहीं होता है, उसके पीछे एक जहाज उड़ने के साथ में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. जब उन चीजों को आप जानेंगे, आपको ऐसा लगेगा एक अलग ही दुनिया है. इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती. एक गलती मतलब कई लोगों की जान. सो हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए. आज हम वीआईपी को फ्लाई करते हैं, वहां कोई एक मिस्टेक के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. तो कोई भी मिस्टेक की कोई जगह नहीं होती है. हम जब ट्रेन करते हैं तो लोगों को उसी माइंडसेट से करते हैं कि नेक्स्ट क्या, आगे क्या. आपको प्रोएक्टिव थिंकिंग करनी पड़ेगी. लाइफ में आगे बढ़ना है तो कहीं पे भी आप स्टूडेंट हैं, आप आगे सोचते हैं कि आज आगे आपका करियर में कैसे बढ़ना है, आपको क्या करना है, आगे क्या, आगे क्या. जब तक आप ये नहीं हाँ, राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. उनका लगता है माइक का कुछ प्रॉब्लम है. अ, ही इज इन मीटिंग और राजेश जी out. आपकी वॉइस नहीं आ रही है हम लोगों को. अ, राजेश जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. ओह सॉरी. Am I audible? अब Yeah. आ गई. Now आपकी आवाज आ रही है.
या Okay. अभी बीच में चली गई थी आवाज 1 मिनट पहले राजेश भाई। Okay. तो नहीं राजेश जी, आपका अभी भाई काफी यही तो इंस्पायरिंग जो स्टोरी है, क्योंकि कहते ना, जैसे आपने गांव से एक होते हुए और गांव से बढ़ के आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। यही स्मार्ट गांव फैमिली का भी उद्देश्य है कि हमको ऐसे ही लोगों के एग्जाम्पल शो एज सेट करने हैं कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, गांव के युवा हैं, वो इंस्पायर हों और आगे आएं। और हरदम यही बात दिमाग में आनी चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। तो वो आपने साबित किया है। और जैसे आप अभी सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े उद्योगपतियों को डेफिनेटली अलग अलग गंतव्य स्थान में पहुंचाते हैं अपने हेलीकॉप्टर, मतलब एविएशन के थ्रू। हमारा सपना है कि आप इसी तरीके स्मार्ट गांव फैमिली में आप हिस्सा बन गए हैं, तो यहाँ पे गांव के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की तरफ भी ले जाएंगे आपके द्वारा। बिल्कुल रजनीश जी, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और जो भी हो सकता है, जितना सहयोग हम कर सकते हैं स्मार्ट गांव को आके ले जाने में, टेक्नोलॉजिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ यूएस में बैठ के भी, और हम यहाँ पे जमीन पे कितना काम कर सकते हैं, जमीन से लोगों को कितने लोगों को जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में जैसे हम एयर एम्बुलेंस करते हैं, हम ऑर्गन शिफ्टिंग करते हैं। इंडिया के अंदर जो पहला हैंड ट्रांसफर किया था, जो हमने चेन्नई से हैंड लेके आए थे, जो घाटकोपर में एक बच्ची के हाथ कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, उस हैंड्स का ट्रांसपोर्टेशन हमने किया था। एंड यू विल नॉट बिलीव, आज वो बच्ची के हाथ जुड़ गए हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ लेके आए थे उसके माता पिता उसको देखने आए उस बच्ची को, क्योंकि उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके हाथ जीवित हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग्स ट्रांसप्लांट, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उससे जुड़ते हो, उस चीज को फील करते हो, मिनट टू मिनट होता है। हार्ट के लिए 4 घंटे का समय होता है। जब आप नहीं हार्ट को किसी के मृत, जो कि ब्रेन डेड पर्सन होता है, कि उसके शरीर से निकाल के एक जो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको लगाने में 4 घंटे, और नहीं तो ये राजेश और जी, शहर में होता है। आपकी आपकी मैं ये जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, आई थिंक सो इसके लिए ये टाइम बहुत ही कम होगा। तो हम लोग समय की बाध्यता को देखते हुए डेफिनेटली एक ऐसा करेंगे आपकी एक स्टोरीज के लिए, बिकॉज सो दैट दिस इज ए गुड एग्जांपल फॉर अदर्स। सब लोग इंस्पायर होंगे। हम एक डेडिकेटेड सेशन भी रखेंगे इसके लिए। और तो इसी के साथ तो सर, हाँ या राजेश जी, या हम लोग थैंक यू आगे। रजनीश जी, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स या योगेश भाई। हाँ, या राहुल, प्लीज थैंक गो यू अहेड। राजेश जी, थैंक यू। मैं रजनी जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट खंडेराव जी का इंट्रोडक्शन दें। Yeah. Thanks, Rahul. So thank you, Khanderao ji, for attending this event. So ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच खंडेराव जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि एक काफी सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं एंड रिनाउंड कंपनी में is working, and also is a social entrepreneur. He is the founder and president of GitPro, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे सिलिकॉन वैली में बहुत सारे एनआरआईज जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि दे कैन शेयर देयर आइडियाज एंड आल्सो दे कैन गिव बैक टू आवर मदरलैंड। इसके साथ ही ये बहुत सारे लाइक स्टार्टअप्स एंड अलग अलग उसके एडवाइजर हैं। और आप जितने सारे यहाँ पे कई सारे जो देखते हैं चेंजेस, एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प आवर एनआरआईज। एंड यही कहेंगे कि एंड इतना कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, इसको अगर परिपूर्ण करने की बात कहें तो खंडेराव जी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। और हम सभी एनआरआईज को वो लगातार यहाँ पे यूएस में इंस्पायर करते रहते हैं, और अलग अलग काफी मेगा इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए। सो थैंक यू ज्वाइनिंग अस खंडेराव जी, एंड फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट। Welcome, Khanderao ji. Welcome and thank you for giving your नमस्ते। time. नमस्कार सर, नमस्कार। तो अभी
सो खंडेराव जी, अभी हम लोग इवेंट को जो एजेंडा के तहत है, हम लोग आगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं और हमारा Yes, ये yes, है, yes. Continue as the flow goes. Yeah. हाँ, एंड देन हम जी आपको और राजेश जी को इनवाइट करेंगे, जिससे आपके इंस्पायरिंग स्पीचेस से ये लोग सभी इंस्पायर हों एंड दे कैन क्रिएट एग्जांपल। या राहुल, प्लीज गो अहेड। या थैंक यू सर, थैंक यू। मैं स्मार्ट गांव के हेड और हमारे मार्गदर्शक श्री अनुराग मिश्रा जी को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ और स्मार्ट गांव प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस है अभी तक उसको डिटेल में शेयर करें सभी के साथ। आदरणीय अनुराग सर। Thank you, Rahul, and thank you. Welcome, Rajesh Sahuji and Khande Raoji to this program. Thank you for attending, giving your time, and coming to this program. मेरा संबंध स्मार्ट गांव मेंटर प्रोग्राम से करीब साल पहले शुरू हुआ, जब मेरी मुलाकात रजनी जी से हुई और उनकी गाइडेंस में हमने प्रोग्राम शुरू किया। हमने करीब 2 स्कूलों के साथ पार्टनरशिप करके हमारा जो गोल है वो ये है कि स्कूल्स में एकेडमिक प्रोग्रेस के अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे काम हम कर सकते हैं, वो हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारे दूसरे मेंटर्स रिसोर्सेज के थ्रू, सम फाइनेंशियल हेल्प, सम इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अभी प्रोग्रेस अगर देखी जाए तो पिछले 2-3 साल से अब हम 2 स्कूल से लेके करीब 8 स्कूल्स तक पहुंच गए हैं। हमारे पास NRI में कुछ मेंटर्स जुड़े हैं, जस्ट लाइक मी, कुछ मेरे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कुछ लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं जो मेंटर्स हैं, कुछ हमारे NRI टेक्नोलॉजी फील्ड्स के जो US में हैं वो जुड़े हुए हैं, और उनका मेन partnership का काम, they work with the schools and run some of the programs, and I'll highlight some of the programs that we do. Public speaking is one, and ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है ये उसी का एक example है, because we want to work more and more on public speaking and developing that skill in all our students. There is also an English language learning program that we run through an organization from Bangalore called Asha Infinite, and last year उनका पहला साल था, इस साल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। Science and art project programs we do, motivational speaker series we do, so उसमें हम लोग every month we try to bring a special speaker who can talk to students and talk about their journey, their accomplishments in their life, and also tell students, for example, how to develop good habits, just general motivation. So राजेश जी, जब आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे अभी, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया कि हम आपको अपने स्कूल्स के बच्चों के सामने कुछ समय अगर आप निकाल पाए तो अच्छा होगा, आप बड़ी इंस्पिरेशनल है। We also do scholarships हमारे इस प्रोग्राम में। तो अभी हम लोग जितने स्कूल्स हमारे पार्टनर्स हैं उनका हम we provide tuition fees for 2 students, जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं पर फाइनेंशियली थोड़े कमजोर हैं। We have done it for the past 2 years and will do it third year as well. अपार्ट उसके अलावा हमारे पास इमोशनल वेलनेस काउंसलर हैं, एक पार्टनरशिप हमने की हुई है जी के सहयोग से। एक बॉम्बे में हमारे पास एक काउंसलर हैं, एंड वो she devotes her time and come in for consulting from time to time. और डिजी स्वास्थ्य करके जो हमारा स्मार्ट गांव का पार्टनरशिप है, उसके साथ हमारा गोल ये है कि हम स्कूल्स में कम से कम एक डिजी स्वास्थ्य का प्रोग्राम इस साल रन करें। तो ये सारे प्रोग्राम हम चलाते हैं। ये सारे प्रोग्राम स्कूल के जो हमारे पार्टनर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मदद से ही हो पा रहा है। ये बिना उनकी मदद से हम कुछ नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, and the teachers from the school for running these and helping us run these programs in your schools and work with the students. करीब आज as of now we can say we are benefiting about 1,500 population of 1,500, mostly including students, parents and staff as well. So ये
मेरे साथ और भी मेंटर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में। मैं जरा देखता हूँ अगर कोई और क्योंकि कुछ लोग सब अलग अलग टाइम जोन में हैं, तो कुछ लोगों के लिए इस मीटिंग अटेंड करना बड़ा मुश्किल है। आई एम ट्राइंग टू सी राहुल कोई और बोलना चाहेगा क्या। तो अभी आज नहीं है बिकॉज वो लोग ईस्ट कोस्ट में हैं, सो यहाँ यूएस में। So yeah, this is our progress, and thank you again, Rahul, for um, bringing everybody together in this meeting. So let's do the next thing. Thank you, Anurag sir. Thank you, sir. Yeah, go ahead, Sania. अब मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और पब्लिक स्पीच कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स को शेयर करें। Yeah, Nitin, next slide. Okay, thank you, Nitin. तो आज का जो ये इवेंट है, ये बेसिकली हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने पब्लिक स्पीच कंपटीशन जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये जो कंपटीशन है ये 15 अगस्त के अवसर पे हमने ऑर्गेनाइज किया था, और इसका जो स्पॉन्सर है जो हमारा स्मार्ट गांव मेंटर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का जो टॉपिक था वो था हमारा यूर विजन ऑफ इंडिया इन 2047, 2047 में आपके सपनों का भारत कैसा होगा। इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 0 थी, मतलब ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री था। और ये जो कंपटीशन था ये 20 जून से लेके 1 अगस्त तक ओपन था। इसमें बच्चों को या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक का एक वीडियो जो दिया गया टॉपिक था उस पर बनाना था, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने 3 कैटेगरी में इस पूरे प्रोग्राम को रखा था। पहली कैटेगरी थी 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे जो पार्टिसिपेट कर सकते थे। दूसरी कैटेगरी में 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, और तीसरी कैटेगरी में 19 से 25 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यह था कि बच्चों की जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है उसको मोटिवेशन दिया जाए और बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड नितिन। ओके, सो इसमें हमारे पास 6 स्टेट से पार्टिसिपेशन आया है, और टोटल 92 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे पास यूपी से आया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने 3 जजेस को अपॉइंट किया था। इसमें खुशी जैन, काव्या वेस्ट और काम्या वेस्ट थे, और जज इसमें 5 जजिंग के क्राइटेरिया हमने निश्चित किए थे। पहला था क्वालिटी ऑफ द रिटन कंटेंट, दूसरा था वेल डिफाइंड बिगनिंग और बॉडी ऑफ द स्पीच एंड द एंडिंग ऑफ द स्पीच, तीसरा था स्पीकर्स की बॉडी लैंग्वेज और उनका आई कांटेक्ट, चौथा था कंपटीशन विद इन द एलोकेशन टाइम जो कि हमने लगभग 2 मिनट या 3 मिनट के आसपास रखा हुआ है। देन इसके बाद मेंटेनिंग द वोकल स्ट्रेंथ। तो ये हमारे क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर इसका जजमेंट किया गया है जजेस के द्वारा। तो मैं उन खुशी, काव्या और काम्या, उन तीनों को थैंक्स बोलूँगा। इन्होंने काफ़ी समय दिया अपना इस पूरे प्रोग्राम को जज करने में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नितिन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जो अमाउंट है विनर्स का अनाउंसमेंट होने के बाद जो उनकी प्राइज मनी है उनसे कांटेक्ट करके उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके उसको वेरीफाई करके विद इन वीक हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, सो नितिन, अब मैं नितिन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और अपना जो प्राइस अनाउंसमेंट है उसको बताएं। नितिन, गो अहेड।
Just for confirm, is my voice coming? Yes, yes. Okay, thank you, Rahul sir. Good morning, everyone. My name is Nitin Mishra, and I'm an EdTech associate at SmartGaon. Once again, welcome all of you to this event today. I'm truly excited to be here today to announce the competition winners and share this special moment with you all. So let's get started and celebrate the achievement together. Firstly, I will announce the category 1 winners. Okay, so category 1 third prize winner is Divyansh Kumar from Elite International School, and he has won prize rupees 3,000. Very And I'm going to play the video of Divyansh. Okay. सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यांश है। मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एलीट इंटरनेशनल स्कूल अफगान है। मेरे सपनों का भारत 2047 में कैसा होगा, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत को आज़ादी मिले कई साल हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो ऐसे ही बनी हुई है, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, गरीबी और निरक्षरता मुख्य है। मेरी दृष्टि में 2047 का भारत ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें ये सभी मूल समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। 2047 का भारत ऐसा भारत हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, कोई भी अशिक्षित नहीं हो, क्योंकि एक विकासशील देश में शिक्षित व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो आदि समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। यदि देश के युवा के पास रोजगार नहीं है तो वह देश विकासशील नहीं कहलाएगा। मेरी दृष्टि में 2047 का भारत ऐसा भारत हो जिसमें सबके पास अपना रोजगार हो, जिससे सब अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर पाए और भी कुपोषण का शिकार नहीं हो, क्योंकि इस देश में सभी युवा रोजगार युक्त होंगे तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। भ्रष्टाचार है भारत की मूल समस्याओं में से एक है। यदि यह समस्या समाप्त हो जाए तो भारत का विकास बहुत तेजी पकड़ लेगा, जिससे मजबूत और कानून का ठोस बनेंगे, जिससे भ्रष्टाचार करने वाला पहले ही सोचने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। very good, very good. Well done, Divyansh. Congratulations. Well done. I request all of you a clap for Divyansh. Yeah, good. Now let's move on Well to the done, next well done, winner. Divyansh. बहुत बढ़िया। So category 1 second prize winner is Ayans Kesari, and he has won prize rupees 5,000. He is from Mulberry Convent School. Very I'm good. going to play his video. नई सदी खरी प्रगति के द्वारा यहाँ पर खोले देखे भारत की ताकत, सबकी हिम्मत डोले, अपना प्रति स्थापना का देखो समय आ गया। अब भारत की गरिमा मन्ना फिर सबके सर चढ़ कर बोले, ऐसे न भारत के संग तो विश्व प्रांगण में जैसे तुम्हें छिन निकला। प्रखंड सूर्यपुरम में आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अयास केसरी है। मैं मलबेरी कॉन्वेंट स्कूल के कक्षा 3 का छात्र हूँ। 2047 में हमारे देश को आजादी मिले हुए 100 वर्ष पूरा हो जाए। मैं अपने भारत को 2047 में ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूँ जहाँ हमारा देश विभिन्न समस्याओं जैसे जात पात, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी आदि समस्याओं से मुक्त हो, जो आत्मनिर्भर हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो, जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे, जहाँ राजनीति जाति धर्म आरक्षण के नाम पर नहीं बल्कि विकास और रोजगार के नाम पर एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो न्यूनतम प्रदूषण एवं स्वस्थ पर्यावरण वाला देश हो, एक ऐसा भारत जो पूरी तरह शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य की सोच को बदलती है। हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान बने अखंड आर्यव्रत हमारी महान पहचान। विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान। अब चिड़िया नहीं, हाँ अब चिड़िया नहीं, सोने का मार्ग बने हिंदुस्तान, सोने का मार्ग बने हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
Wonderful बढ़िया। performance Very good. by Ayans Kesri. Congratulations, Ayans. Clap for Ayans. सही में केसरी Very हो। Okay, Well now done. move on to the next winner. So category 1, first prize winner is Paridhi Agrawal from Mulberry Convent School, and she has won rupees 8,000. Very good. And I'm going to show you the video. Okay, so Paridhi. Hello everyone, my name is Paridhi Agarwal in class 5th from Mulberry Convent School. Today I am going to speak about the vision of India in 2047. Ladies and gentlemen, as we stand on the brink of celebrating a century of independence, I am honored to share my vision for our beloved nation India in the year 2047. I see an India that has soared beyond my wildest dreams. A nation where every child has the wings of education and the roots of cultural wisdom. In the span of 100 years, India has transformed from a young republic into a beacon of democracy, diversity, and development. The journey has been remarkable, and future holds even greater promise. By 2047, India will have embraced a technological renaissance, becoming a global leader in 2047. Economic powerhouse. Our economy, robust and enthusiastic, stands the world's largest. It is driven by a workforce that is skilled, entrepreneurial and innovative. Social harmony. Socially, we have achieved new heights of education and healthcare, universally accessible, ensuring the well-being of every citizen. अब मैं आपको हिंदी में स्लोगन सुनाना चाहती हूँ। जब महिलाएं खुलकर सांस लेना सीख लेंगी, जब भारत की नारी को अपने हक की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, एक बार फिर जब भारत की सभ्यता का डंका चारों ओर बजेगा, 2047 में हम सभी को देखने मिलेगा श्रेष्ठ भारत, एक भारत। जाति धर्म की बातें पीछे छोड़कर एक नए भारत का उदय होगा। जय हिंद। Very good. Outstanding performance by Paridhi Agrawal. Congratulations, Very good. Paridhi. Now Well done, let's Paridhi. see category 2 winners. Category 2 third prize winner is Arpita Sharma from Government Senior Secondary School, Patoda, and she has won rupees 3,000. And I'm playing her video. Sure. मेरा नाम अर्पिता शर्मा है। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। 2047 में भारत के लिए भी मेरा एक विज़न है। 2047 में भारत के लिए मेरा एक विज़न एक पर्यावरण के अनुकूल, शिक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ भारत है। वर्ष 2047 के संदर्भ में हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने के बाद हम भारत को कहाँ देखते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर देश के विकास के लिए काम करना होगा ताकि हमारे अंदर एकता की भावना पैदा हो और खंडित सोच से मुक्ति मिले। मेरी दृष्टि है कि 2047 में ऐसा भारत जो पूरी तरह से विकसित हो, जहां हर युवा के पास रोजगार हो, जहां कोई गरीबी और भूख से नहीं मर रहा हो। तो मैं 2047 में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के रूप में भी देखती हूँ। मेरी दृष्टि है कि 2047 में देश में जाति और धर्म के नाम पर कोई गिनना न हो। 2047 में भारत की सड़कों पर चलने वाली हर लड़की सुरक्षित हो। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे स्थापित और विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखती हूँ। मैं भारत में आम जनता के लिए आसानी से सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उसकी कल्पना करती हूँ। मेरा सपना है कि 2047 में भारत का हर बच्चा शिक्षित होगा, जो निश्चित रूप से सार्थक होगा। इसके लिए हम सभी को अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। अगर हम एकता के साथ प्रयास करें तो भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और 2047 तक भारत के नाम पर विश्व गुरु की उपाधि अवश्य होगी। जय हिंद। Very good. Wonderful, Arpita. Congratulations. Congrats, Arpita. Congratulations. Congrats. Okay, so category second prize winner is Nitish Kannaujiya from CVN Science School. He has won rupees 5,000. Okay, so Nitish Kannaujiya. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम
नीतीश कनौजिया है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मेरा विषय मेरे सपनों का भारत 2047 में कैसा होगा पर है। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ लोग कुरान की आयतों को गीता की श्लोकों की तरह याद करेंगे और बाइबल के सामों को गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की तरह फरियाद करेंगे। वाह, कितना सुंदर वो नजारा होगा जब मेरा यह सपना पूरा होगा। वर्तमान समय में मेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है कि मेरे सपनों का भारत 2047 में कैसा होगा। आज भारत विकास की ओर निरंतर अग्रसर है, किंतु आज भी हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वह पूरी तरह से ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर युवा के पास रोजगार और हर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि कहा भी जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहें सच्ची, भिखारियों की हालत बेरोजगारों से अच्छी। अंत में मैं अपने भारत को 2047 में विकसित, भ्रष्टाचार मुक्त, रोग रहित और हर युवा के पास रोजगार और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न से मुक्त देखना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नीतीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लैप फॉर नीतीश प्लीज। Yeah. Okay, so next the first prize winner is Kajal Sar from Kolkata. मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। इससे पहले कि सपने सच हो, हमें सपने देखने होंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है 2047 में मेरे सपनों का भारत। 2047 में मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहां हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे। एक ऐसा देश जहां जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी जो न केवल पुस्तकीय ज्ञान अपितु नैतिक मूल्यों एवं नवाचारों का भी विकास कराएगी। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहां हर अस्पताल अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होगा और हर एक व्यक्ति को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होगी। मेरे सपनों का भारत पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील होगा और इस सपने को पूर्ण करने के लिए हमें एक साथ आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल काजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया काजल, बहुत ही बढ़िया। गॉड ब्लेस। ओके, सो कैटेगरी 3 में हमें पर्याप्त एंट्री प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए हम इनकरेजमेंट अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि जाता है बैनू गजपाल को, दुर्ग से। इनका वीडियो चला के दिखाता हूँ आप सभी को। 2047 में हमारे सपनों का भारत ऐसा होगा। मेरे सपनों का भारत डिजिटल भारत होगा, जहां हर व्यक्ति शिक्षित होंगे और हर किसी को योग्य रोजगार के मौके मिल सकेंगे। भारत वैज्ञानिक, तकनीकी और कृषि रूप से अधिक परिष्कृत होंगे। देश के कई हिस्सों में आज भी जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहां ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। आज हम वर्षा के जल को संरक्षित करके रखेंगे तो 2047 में मेरे सपनों का भारत वर्षा की कमी से मुक्त होगी। आज हम वृक्षारोपण करेंगे तो आने वाले 10 सालों में यह वृक्ष बनकर हमें अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करेगी और वातावरण अनुकूल बना रहेगा। धन्यवाद।
Very nice. बहुत बढ़िया वेनु, congratulations, clap for वेनु. Well done. Yeah, Very well nice. done. So यहाँ पर हमारे सभी winners अनाउंस हो चुके हैं and now I want Shania to continue the program. Thank you. थैंक यू सर। अब मैं हमारी चीफ गेस्ट खंडेराव जी को इनवाइट करूंगी कि वो आएं और प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें और हमें प्रोत्साहित करें। So awesome performance, everybody. Congratulations. Almost, I think, 8 years back, most probably, when Rajneesh met me, I remember, I think, Starbucks in Cupertino outlined the vision of Smart Gaon. And it was very unique, ambitious, and a different vision. Typically, when I meet many entrepreneurs or people in Silicon Valley, we see people were inspired by making money, making difference in their own life. But a grand vision that he took it up to transform Bharat from the very foundational element of Bharat, that is the village, which India is 70-80%. We say that is a village. The large population is agri-based. It has been transforming. Overall, Bharat has, in last 75 years, transformed a lot. But at the villages level, the transformation rate is very slow. And till that does not change, the Bharat itself cannot be transformed. Understanding that, realizing that is a possible for most of the people who think about it. But only few people take that as a challenge and as a dream and life mission. And that is something that Smart Gaon is. And I congratulate it, because when it started, many such kind of initiatives come, but very few survive. And among them, very few flourish. So it's a great milestone from Smart Gaon as a project, as a movement. And that credit goes to all of you, mentors, founders, advisors. Many people I know that they are associated with this. I do remember that probably this was announced or launched, this concept, around the time or even before smart cities was announced by Prime Minister Modi ji. I think Rajneesh can just correlate the time and then later tell me, but I remember that. Prime Minister Modi actually, say again, Rajneesh ji, is it correct? Yeah. Means after that, when Smart City came, after that, Correct. that we have to do. And Yeah, I do remember that. I was actually convener of Modi ji's Silicon Valley visit. And आप लोग सभी को बताना चाहूंगा, एक सॉरी टू इंटरप्ट, कि जो हम बोलते हैं ना कि वो इंस्पिरेशनल स्पीच जो हमने सुनी थी यहाँ पे सैन होजे कन्वेंशन सेंटर पे, उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के जो की पर्सन थे वो हमारे खंडेराव जी थे, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की। तो समझिए वो जहां से स्टार्ट हुआ एंड ही वाज पार्ट ऑफ इट। तो थैंक यू, आपने आपकी ऑल द इंस्पिरेशन एंड ऑलवेज सपोर्ट। Thank you. So I think that time Modi ji had also announced Digital India. That was in the afternoon. If you may remember that Google's CEO Sundar Pichai, and then Adobe CEO, and so a bunch of entrepreneurs were there, and almost a few thousand entrepreneurs, investors, and techies from Silicon Valley had assembled. That time Digital India concept was launched. So having an idea and passion to take a big dream, that is what the Smart Gaon has actually shown. And initially at some towns in probably Maharashtra, Karnataka, and other places, and it has grown a lot. And so I really, again, congratulate all of you. Now, why this is successful, for any such success, idea is not the only thing.
is must thing. There is also necessity, a need. You can have an idea, but it needs to have some sort of a necessity, or necessity probably gives a birth to the idea. Many times in startup, people come with a product, but the product has to solve something. So that you have to focus on a problem and finding out a solution for that. You can't go with a hammer and try to find out a nail. So there is a necessity realizing that, coming up with an idea which can solve that. These are the basic few things. But most important, that assembling the people, forming a team, not just the identifying the talented people, but make them work together. And then execute that the plan, having the tenacity to take all the challenges. Any dream, it is not a straightforward path to a victory. It goes through ups and downs. And I'm sure that SmartGaon has had its own challenges and would have the challenges. But when people are there, they can take on such kind of a challenges and then still flourish towards the path. And I do see this today with the ideas, how even this competition, there are few aspects which really make me very realize that how thoughtful the team is. Even the selection of the topic, Bharat 2047, 100-year from Bharat's independence, how it would be. It's not just the topic, but with this topic, all the participants had to think about that. It's not about the public speaking, but it is the thinking. So also the timing, if you look at it, just a couple of minutes, and people may say that why just the public speaking should be some longer speech or anything. I do remember Abraham Lincoln's, and the quote might not be exactly what I'm saying, but I'm just verbalizing in my own voice, that someone approached him for a speech. And he said that how long you want, or how much time I have for the speech. And then he was saying that why it is important, because he was a kind of voracious reader and speaker, and he didn't even need to think about anything. You can just invite and he can start speaking. But he said that if you want me to talk for hours, I can instantly start talking. If you want to talk me for say 15 minutes, you need to give at least me a month. But if you want me to talk just for a minute, then come back after 6 months. The timeline may vary, but if you want to put in your thoughts in a very short period of time, it requires a lot of thinkings, not only the thoughts, arranging that, the presenting. So that's why even if it is a 1 minute video or whatever the duration of the video, I'm sure that all the participants might have thoughts very carefully that how they can pack their thoughts, succinctly express in a very few words in a short duration. So the topic, the selection of that, and also the medium. It's in the today's digital world, all this, if you see the influencers or anything, they are on the social media. So where the digital content is also very important. So all these three dimensions that you have put together, I very liked about the thoughts behind that, the preparation of the candidates. I'm sure that all the participants, not just those who own or got the awards, but all the participants, this particular competition made them think about this topic. And some of them may get inspired that not only on the topic, but how they can contribute that. I'm sure that while speaking about Dream of 2047, some of you, those who participate in the competition, but also those who listen to this or help to make them competitions successful, might have thought about that what is their role, what is our role in this journey, and how we can contribute into that. I think that with these thoughts, even if few people get inspired, that would be great
success of the competition. Once again, I congratulate SmartGov team for this successful program and also wonderful initiative. I hope that you continue this kind of initiatives and this itself becomes a movement and it flourishes and it spreads all across the Bharat. Dhanyawad. Thank you, sir. Thank you, Kandirao-ji. It's a pleasure to hear you here, and I think I am interacting first time with you. So it's very, I mean, I'm happy and I'm glad that I am participating today's meeting and I'm joining you here. So thank you, sir. And I'll request you to allow some time later so that you can catch up and we can share more ideas. Sure. Thank you. Thank you, sir. Definitely, Yogesh ji, I think so. We'll have and we'll take more guidance and more advices from Kandirao ji, because now Kandirao ji is already, because Kandirao ji is the key advisor for SmartGov already, and so we'll discuss offline and we'll more how we can make it more bigger on this. Thank you, Kandirao ji, for joining us. Thank you. Yeah, Rahul, please. Yeah, go ahead, Sania. थैंक यू सर। अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट राजेश सर जी को इनवाइट करूंगी कि वो आए और अपनी स्पीच के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you, everyone. It was like eye-opener for me to see this platform working on a very large scale. I was thinking this initiative was taken by only 2 people, but today I can feel this is reached to the roots of the India. We are reaching every part of India, and I'm glad to be a part of this initiative and journey. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Rajesh bhai. हाँ, थैंक यू योगेश भाई, आपने राजेश जी को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों से। एंड डेफिनेटली कहते हैं ना कि एक एक बूंद से गागर भरता है, और सो ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोग डेफिनेटली आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, हम स्कूल का जो मेंटर्स प्रोग्राम है अनुराग जी के द्वारा एक अलग सेटअप करेंगे, जिससे आप और बच्चे से प्रेरणा लेंगे। थैंक यू। या सानिया, प्लीज गो अहेड। या योगेश, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं मेंटर्स प्रोग्राम की जो टीम है उसको बहुत आज मैं बहुत ये प्रोग्राम देख के ना मुझे एक चीज़ और अच्छी जो समझ में आई है। मैं बहुत कम इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं दूसरे ऑपरेशंस में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सो मेंटर्स प्रोग्राम में मेरा पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। बट अनुराग जी एंड जितने भी मेंटर्स हैं जो आज अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है, एंड जो हमारे जो जजेस बने थे जो बहुत पहले से काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं हमेशा इवेंट में, एंड राहुल, नितिन, you guys are doing amazing, right? ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। the way you have basically guided participants, the way they prepare themselves, the way they presented, ये जर्नी जैसे खांडेराव जी ने एक्सप्लेन किया, एक जर्नी होती है कि कैसे एक थॉट को पे रिसर्च किया जाता है, समझा जाता है, डीप जाके फिर उस पे से शब्दों को लाके उसको प्रेजेंट करा जाता है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम लगा है और आप सबकी बहुत कड़ी मेहनत रही है, मुझे समझ में आ रहा है देख के। सो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं ये इतने अच्छे से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्सेसफुली। और आज इसको इस तरह से आज समापन है, आज इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो और इस पर हम सबका सपोर्ट है ही और रहेगा, और हम और इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करेंगे, बड़ा एक और ज़्यादा लेवल पे स्केल करके करेंगे आगे से, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो थैंक यू अनुराग जी, आपके और भी टीम में और भी लोगों को ऐड करेंगे ताकि ये इवेंट को और मतलब ये पूरा जो मेंटर प्रोग्राम है उसको और स्केल करके और नंबर ज़्यादा स्कूल्स को ऐड कर सके, एक बड़ा टारगेट बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। Thank you, Thank you. Yogesh. Thank you for your cooperation and guidance. थैंक यू Yeah, go सर। ahead. अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में राहुल जी को इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सानिया। आज के कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि खंडेराव सर जी और राजेश साहू जी, हमारे प्रोग्राम के जो हमेशा सहयोग करते हैं, मेंटर प्रोग्राम के हेड अनुराग सर जी और चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर
और स्कूल से पधारे सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस प्रोग्राम को दिया। और बच्चे थे, उनका मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि यदि सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो इसमें उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना है जिनको प्राइज़ नहीं मिला है। आप थोड़ी और मेहनत करिए, डेफिनेटली अगले जो मेंटर प्रोग्राम का जो हमारा स्पीच कंपटीशन होगा उसमें आप लोगों को निश्चित ही प्राइज़ मिलेगा। आप अपना मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Rahul. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you, Rajesh Thank bhai. you, Yogesh bhai. Thank you, Yogesh bhai. Thank you, Jai Rajneesh ji. Hind, Jai Bharat. जय Thank you, Rajneesh ji. थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय